Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. I hope you're all doing well, and I hope that you're preparing very nicely. We are in our paid course, so I've already started with my paid course for UPPSC GDC exam, and we're doing fiction unit. But since I was doing translation unit with you guys on YouTube, I thought let's continue with that a little bit more. And here is the next topic in your Unit 10, Literature in Translation. So we talked about the main concepts in the short videos, and then we started with the translation theory and practice, the subtopic that is there. We did the first two essays, and this is the third one. It's by Daniel Simeoni. It's called Translation and Society: The Emergence of a Conceptual Relationship. Before going into the text, I want to talk about the text, what it is. Is it a complete essay? Is it a paper? What is it? What is it basically? So Daniel Simeoni's Translation in Society, it's not a full research paper which reports some empirical data like surveys do or like experiments do. It is basically a theoretical position, or we can say it's an essay which is written as a chapter. Okay, and it's a chapter in this volume called In Translation. Here, In Translation, Reflections, Refractions, Transformations, and this volume is edited by Paul Saint Pierre and Prafulla Kar. इस वॉल्यूम के अंदर हमारा जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इस वॉल्यूम के अंदर एक चैप्टर की फॉर्म में है. अब इसमें है क्या, एक कॉन्सेप्चुअल आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया है इन्होंने कि जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, इट नीड टू एंगेज डीपली विद सोशियोलॉजी, एंड इट ऑल्सो स्केचेज आउट द टूल्स एंड एजेंडा फॉर दिस एंगेजमेंट. तो सिर्फ ये नहीं बताया है कि हाँ सोशियोलॉजी के साथ एंगेज करना है, ये भी बताया कि कौन से टूल्स हैं और क्या एजेंडा यूज़ करना है इस एंगेजमेंट के लिए जो सोशियोलॉजी के साथ एंगेज करना है. सो इट इज़ एन एसेइस्टिक theoretical chapter, we can say. It's not a research article with data or case studies. In a different form, rather than the case study or a data, if you want to call it like that, you can. What is the structure of the chapter now? The structure is very systematic. Broadly, सबसे पहले उन्होंने introduction दिया है जो problem statement है. So he frames the puzzle. Despite translation's central role in culture and communication, sociology has largely been ignored. इस लहजे से हम इसको एक रिसर्च टेक्स्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक अ रिसर्च पेपर इन्होंने एक रिसर्च प्रॉब्लम दे दी ना हमें कि ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी कल्चर का, हमारे कम्युनिकेशन का, फिर भी सोशियोलॉजी को इग्नोर किया है. सो ही पोजेस द की क्वेश्चन, व्हाई इज देयर सच अ गैप between translation and society as conceptual categories. So translation और society को अलग अलग क्यों रखा गया है? So second, he goes on to diagnose this neglect. So he explains historical and disciplinary reasons why sociology and social sciences didn't pay attention to translation. So he goes back to the history and he tries कि चलो हम कुछ ढूंढते हैं why सोशोलॉजी और जो सोशल साइंसेज हैं उन्होंने ट्रांसलेशन पे ध्यान क्यों नहीं दिया है. ना ही नोट्स हाउ लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी स्टडीज ऑल्सो फ्रेम्ड ट्रांसलेशन इन नैरो वेज. इवन लिटरेचर में या लिंग्विस्टिक्स में ट्रांसलेशन को एक बहुत ही नैरो सा रास्ता दे दिया है, लीविंग द सोशल एस्पेक्ट आउट ऑफ इट. Number 3, he goes on to talk about the conceptual foundations. So he introduces sociological categories, especially from Bourdieu. Assuming, because आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ रहे हो तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स. हैबिटस, फील्ड, कैपिटल, दीज आर द टर्म्स फ्रॉम पियरे बोर्डियू. लिटरेरी थ्योरी में हम पढ़ते हैं, तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं हम हमारे को सोशोलॉजिकल कैटेगरीज बोर्डियू से. हैबिटस, फील्ड और कैपिटल. कैपिटल बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है. एक तो कैपिटल पैसे, दूसरा हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी में, जो आपने इज़्ज़त कमाई है सोसाइटी में, वो एक अलग तरह की कैपिटल है. तो कैपिटल्स को इन्होंने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है. सेम गोज़ फॉर हैबिटस एंड फील्ड.
कि हमारे बिहेवियर्स, हम जिस सोशल एस्पेक्ट में रहते हैं, कैसे हमारे बिहेवियर्स उस सोसाइटी में रह के डेवलप होते हैं. ठीक है. सो ही आर्ग्यूज दैट दीज टूल्स दे हेल्प अस स्टडी ट्रांसलेटर्स नॉट एज इनविजिबल टेक्नीशियंस बट एज सोशली पोजिशनड एक्टर्स. अब ट्रांसलेटर्स भी तो सोसाइटी में रह रहे हैं ना. सो दिस ही आर्ग्यूज दैट ये जो टूल्स हैं, हम लोग अगर कुछ सोशोलॉजिकल कैटेगरीज को ट्रांसलेशन के साथ जोड़ें तो वी विल फाइंड दैट दीज ट्रांसलेटर्स आर नॉट इनविजिबल, they are not just technicians, they are also living in a society and they are socially positioned actors. Then he talks about actors and networks. So he expands the focus from the translator to the broader system. कौन? Publishers, critics, funding bodies, institutions, markets. तो ये पूरा expand कर देते हैं. जो focus है from the translator to the broader system, कि ये एक network है पूरा ट्रांसलेशन का. पब्लिशर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, फंडिंग बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट है. एम्फसाइजेस ट्रांसलेशन एज अ नेटवर्क्ड प्रैक्टिस विच इज शेप्ड बाय मैनी एजेंट्स. इट्स नॉट जस्ट द ट्रांसलेटर बट बहुत सारे अलग अलग एजेंट्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं. नॉर्म्स, पावर, इनइक्वालिटी. ही डिस्कसेस कि हाउ norms of translation are socially constructed and how they are tied to cultural hierarchies. ठीक है. तो किस तरह से जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं ट्रांसलेशन के, वो एक्चुअली सोसाइटी सोशोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड हैं नॉर्म्स, और उनको फिर हम कल्चरल हायरार्कीज के साथ जोड़ देते हैं. ही नोट्स ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ इन ट्रांसलेशन फ्लोज, जैसे कि डोमिनेंट वर्सेस पेरिफेरल लैंग्वेजेस. मेन लैंग्वेजेस को ऊपर रख देंगे, छोटी लैंग्वेजेस, पेरिफेरल लैंग्वेजेस को नीचे रखेंगे. हायरार्की बनाई हुई है, हर जगह होता है. Then he talks about methodological directions. He suggests ways to research translation sociologically. Ethnography, historical study, field analysis, network studies, mixed methods. तो ये सब suggestions हैं ये कि रिसर्च करो ट्रांसलेशन को सोशोलॉजिकली, कि कोई वर्क है जैसे उसका हिस्टोरिकल स्टडी, उसका फील्ड एनालिसिस, उसका नेटवर्क स्टडीज़, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करके. एंड फाइनली ही रीस्टेट्स द सेंट्रल क्लेम दैट ट्रांसलेशन इज सोशली एम्बेडेड, रिक्वायरिंग न्यू अप्रोचेस. ही आउटलाइंस द प्रायोरिटीज़ फॉर अ sociology of translation and how this can enrich translation studies. तो क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए एक सोशोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन की, और इसको कैसे काम करना है, इससे कैसे ट्रांसलेशन स्टडीज़ बेहतर हो जाएगी, ये इन्होंने बताया है. ठीक है. बाय द लेट 1990s एंड अर्ली 2000s ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो था, इट बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम प्योर लिंग्विस्टिक और टेक्सचुअल मेथड टूवर्ड्स अ कल्चरल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो ये जो थे सिमियोनी, ये एक लीडिंग फिगर थे इस मूवमेंट में. 1998 का इनका आर्टिकल था द पाइवोटल स्टेटस ऑफ द ट्रांसलेटर्स हैबिटस. ये एक बहुत लैंडमार्क आर्टिकल था in terms of translation studies, and he brought Bourdieu into it. He brought Bourdieu into translation studies. अब ये जो चैप्टर है, it served as a programmatic essay encouraging scholars कि सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ मत करो, bring something new to it, to systematize research on translation as a social practice. इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ प्रोफेशंस को लिंक कर दिया कल्चरल प्रोडक्शन, और मतलब सब चीज़ों को लिंक किया ट्रांसलेशन के साथ. सो द टेक्स्ट बिकेम वेरी फाउंडेशनल फॉर व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है. नाउ विल गो टू द ऐसे. वैसे तो बता दिया, तो वही सब है. सेंट्रल एम क्या है? सिमियोनीज प्राइमरी गोल इज़ टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई the relationship between translation and society has gradually emerged as a conceptual field of inquiry. ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है इंक्वायरी का ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, जो ये रिलेशन है बिटवीन ट्रांसलेशन एंड सोसाइटी. He critiques the long neglect of translation by social sciences and calls for its recognition as a socially significant practice. Social sciences ने कभी पढ़ा आपने सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में ट्रांसलेशन?
नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा, हमने बात ही नहीं की। इतनी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, कोई ज्योग्राफी में हो या हिस्ट्री में हो या पॉलिटिकल साइंस में हो, all the concepts are just given, nobody mentions translation. So he has critiqued that long neglect of translation by social sciences, and he says it's high time now कि recognition मिलना चाहिए translation को, because it is a very significant social practice. So this chapter outlines both the diagnosis of neglect and proposal for a sociological approach. तो एक तो उन्होंने डायग्नोज भी किया इस निग्लेक्ट को, और फिर अपने प्रपोजल भी दिया है कि किस तरह से अप्रोच किया जाए ट्रांसलेशन स्टडीज़ को सोशियोलॉजिकली. सो ही सेज ट्रांसलेशन इज़ ओमनी प्रेजेंट इन ह्यूमन कल्चर. हर जगह है. पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमें दुनिया भर की हिस्ट्री पता है, हमें दुनिया भर की ज्योग्राफी पता है, कल्चर पता है. कैसे पता है? क्योंकि ट्रांसलेट करके वो आया है हम तक. हमें नहीं आती फ्रेंच पढ़नी या स्पेनिश पढ़नी या मैंडरिन पढ़नी, वो सब ट्रांसलेट होके हमारे तक आता है. इट्स वेरी मच देयर, ओमनी प्रेजेंट है हमारे कल्चर में. फिर भी रेयरली कोई उसकी बात करता है. उसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं किया गया है एज अ की सब्जेक्ट विद इन सोशियोलॉजी और अदर सोशल साइंसेस. इंस्टेड ट्रांसलेशन को क्या किया है, इट हैज़ बीन कन्फाइंड मोस्टली टू लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी स्टडीज़. ये तो इन्हीं का पार्ट है, where the emphasis is on language transfer, fidelity और टेक्स्ट इक्विवेलेंस. बस वही बात है कि ठीक है, लिटरेरी स्टडीज़ में हम लोग टेक्स्ट टू टेक्स्ट बात करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस की बात करते हैं. सिमोनी ने पॉइंट आउट किया दैट दिस फ्रेमिंग अंडर एस्टिमेट्स ट्रांसलेशंस सोशल एम्बेडेडनेस एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशनिंग. ही गिव्स रीजंस फॉर निग्लेक्ट. डिसिप्लिनरी ब्लाइंड स्पॉट्स. जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी था या है, इट फोकस्ड लार्जली ऑन द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर. सोशियोलॉजी में क्लास, स्टेट, इंस्टीट्यूशंस, किनशिप, यही सब बड़े बड़े टर्म्स हैं. और माइक्रो जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि ट्रांसलेशन, उसको निग्लेक्ट कर दिया. ट्रांसलेशन वॉज कंसिडर्ड टू टेक्निकल एंड नॉट सेंट्रल इनफ टू सोशल थ्योरी. दूसरा, लिंग्विस्टिक रिडक्शनिज्म. मोस्टली जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन्स हैं, ट्रांसलेशन को कैसे ट्रीट किया गया? टेक्सचुअल इक्विवेलेंस या फिर लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी के टर्म्स में उसकी बात की गई. तो ये बहुत नैरो फोकस था. इसने एक्सक्लूड कर दिया क्वेश्चंस अबाउट इंस्टीट्यूशंस, पावर और कल्चरल सर्कुलेशन. थर्ड, मार्जिनल प्रोफेशनल स्टेटस. ट्रांसलेटर्स देमसेल्व्स हिस्टोरिकली ऑक्यूपाइड वेरी लो प्रेस्टीज. जैसे हम लोग राइटर्स को जानते हैं मोस्टली. अभी हम लोग बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करते हैं, है ना. इस इंडियन राइटर को मिला, उस इंडियन राइटर को मिला, बट एक्चुअली ट्रांसलेशन को मिला. ट्रांसलेटर का नाम पता है? हार्डली किसी को पता होगा. तो ट्रांसलेटर्स का जो ये प्रेस्टीज है, इट वाज हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लो इन द सोसाइटी. तो इससे क्या होता है? इट रीइंफोर्सेस इनविजिबिलिटी. नाउ बिकॉज द ट्रांसलेटर वॉज सीन एज सेकेंडरी, ट्रांसलेशन डिड नॉट अपीयर टू वारंट सोशोलॉजिकल थियोराइजेशन, कि ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको इतनी बड़ी फील्ड के अंदर सेंट्रल रोल नहीं दिया जा सकता. टर्निंग पॉइंट, वाई सोसाइटी मस्ट बी लिंक्ड विद ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन इन्फ्लुएंसेस द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़. अरे भाई, उस हिंदी की किताब को अब जाके इतना फेम मिला बिकॉज उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और अब सबके घरों में है वो बुक. ट्रांसलेशन की वजह से आइडियाज़ सर्कुलेट हुए, वैल्यूज़ पहुंची. हमारी संस्कृत लिटरेचर है या जो भी हिंदी लिटरेचर है, मलयालम, डिफरेंट लैंग्वेजेस का लिटरेचर है, वो वर्ल्ड तक तभी पहुंचा है बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटर्स. तो आइडियोलॉजीज अक्रॉस कल्चर हैज़ बीन बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, बट दे ऑक्यूपाई अ सेकेंडरी पोजिशन. इट मीडिएट्स asymmetries between dominant and dominated languages or cultures. It is deeply tied to cultural prestige, yes, global markets, educational system and political projects. Therefore, ignoring the social dimension of translation is a major analytical gap. अब conceptual tools इन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ. सिमियोनी ने कहा कि चलो सोशोलॉजिकल कैटेगरीज को लेके आया जाए, लार्जली इंस्पायर्ड बाय बोर्दियू.
टू एक्सप्लेन कि किस तरह से ट्रांसलेशन और सोसाइटी एक्चुअली लिंक्ड हैं. So he talked about habitus, which is a term given by Bourdieu. Translators internalize dispositions shaped by their education, professional backgrounds, and social environments. These dispositions guide choices, strategies, and styles, even unconsciously. Habitus क्या होता है? आप किस जगह पे रह रहे हो, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, आप किस रिलीजन में रह रहे हो, आपका माहौल क्या है घर का, वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर पे, हमारे अनकॉन्शियसली हमारे नेचर पे इफ़ेक्ट करती है. ट्रांसलेटर्स भी किसी ना किसी बैकग्राउंड से हैं, तो इनका जो इंटरनलाइज्ड डिस्पोजिशन है, इट इज़ ऑल्सो शेप्ड बाय कैसी एजुकेशन मिला, क्या उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड था, सोशल एनवायरनमेंट क्या था. तो ये सारी जो डिस्पोजिशंस हैं, इट गाइड्स देयर चॉइसेस, उनकी स्ट्रैटेजीज, इवन अनकॉन्शियसली. हैबिटस हो गया फील्ड. ट्रांसलेशन डज नॉट अकर इन आइसोलेशन बट विद इन फील्ड्स. जैसे कि अगेन कौन सी फील्ड में है, मतलब एक लिटरेरी फील्ड, पब्लिशिंग फील्ड, एकेडमिक फील्ड या पॉलिटिकल फील्ड. तो ट्रांसलेशन भी आइसोलेशन में तो नहीं होता. ईच फील्ड हैज़ हायरार्कीज. एक लिटरेरी फील्ड में एक है कोई, उस फील्ड में एक हायरार्की अपनी होगी. पब्लिशिंग फील्ड, एकेडमिक, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं हमारे आसपास, हमारे हैबिटस के आसपास. तो किस तरह से ट्रांसलेटर्स उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं. एक मिनट. Yeah. So such fields always have hierarchies. They will have rules. They will have struggles for legitimacy. हमें लेजिटिमेसी मिले, हमें मिले. तो ट्रांसलेटर्स भी एक पोजीशन अपनी बनाते हैं विद इन दीज फील्ड्स. ठीक है. तो अब दोबारा से अगर हम बॉर्ड्यू के कॉन्सेप्ट को समझें, हैबिटस को अगर समझना है तो थिंक ऑफ इट जैसे आपका इंटरनल कंपास. मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके हैबिट्स बनाती है, जो आपके टेस्ट्स, आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, आप किस तरह से सोचते हो, वो सारी चीज़ें आप तक लेके आती है. तो ये कहाँ से आता है? हमारे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारी एजुकेशन से, हमारे कल्चर से, राइट. ये है हैबिटस एंड इट वर्क्स अनकॉन्शियसली, राइट. यू डोंट चूज इट एवरी डे. इट्स अब बचपन से आपका शेप हो रहा है. फील्ड होता है जैसे कि एक अरीना या एक सोशल गेम समझ लो. हर एक फील्ड जैसे एजुकेशन है या आर्ट है या पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स, रिलीजन, उसके अपने अपने रूल्स होते हैं. हर एक के अपनी अपनी पावर स्ट्रगल्स हैं, है ना. अपनी अपनी फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हैं. डिफरेंट फील्ड्स, दे विल वैल्यू डिफरेंट थिंग्स. इन स्पोर्ट्स फिजिकल स्किल विल काउंट. एकेडेमिया में आपकी नॉलेज विल काउंट. बिजनेस में मनी, आपका कितना इन्फ्लुएंस है. तो हर एक फील्ड का अपना हायरार्की होता है, राइट. तो उसी के अंदर प्लेस किया इन्होंने ट्रांसलेटर्स को भी. तीसरी बात आती है कैपिटल की. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर रिसोर्सेज. तो ट्रांसलेटर्स जो हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑपरेट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल. कल्चरल फॉर्म, सोशल फॉर्म, इकोनॉमिक. तो कल्चरल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल और सोशल कैपिटल. कल्चरल कैपिटल क्या होता है? आपका कितना नॉलेज है, आपका कितना प्रेस्टीज है, स्टेटस क्या है सोसाइटी में. सोशल, आपके कितने कनेक्शंस हैं, आपका नेटवर्क क्या है. और इकोनॉमिक, आपके पास पैसा कितना है. ठीक है. द एक्यूमुलेशन और लैक ऑफ कैपिटल विल एक्सप्लेन वाई ट्रांसलेशंस गेन प्रोमिनेंस व्हाइल अदर्स आर मार्जिनलाइज्ड. अब ये सारी चीज़ें लिंक्ड है एक ट्रांसलेटर के साथ. आपका कैपिटल कितना है, तीनों कैपिटल्स, कितना आपने इकट्ठा किया है, कितना आप लैक करते हो, आपके कितने कनेक्शंस हैं, आप अकेले हो, आपके पास पैसा है क्या. ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं ट्रांसलेटर को टू गेन प्रोमिनेंस एंड दैट इज़ वाई अदर्स आर मार्जिनलाइज्ड. तो नॉर्म्स क्या हैं? एक्सेप्टेबल वेज ऑफ ट्रांसलेटिंग आर नॉट फिक्स्ड बट दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड. जो नॉर्म्स हैं अबाउट स्टाइल, about fidelity or about adaptations, they are produced by institutions and communities of practice. तो ट्रांसलेशन को कौन शेप करता है?
तो सिमियोनी ने एम्फसाइज किया कि जो ट्रांसलेशन है इट इज़ नॉट मेरिली अबाउट द लोन ट्रांसलेटर, लेकिन उसके साथ बहुत सारे एक्टेंट्स हैं, नेटवर्क है पूरा. ट्रांसलेटर्स ऑफ कोर्स आर सेंट्रल मेडिएटर्स बट दे आर शेप्ड बाय हैबिटस. पब्लिशर्स फिर एडिटर्स आते हैं, दे विल डिसाइड क्या पब्लिश होगा क्या नहीं होगा और उसको कैसे फ्रेम किया जाएगा. क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स, आपका पूरा रिसेप्शन कैसा है, प्रेस्टीज पे सारा खेल जाते हैं. किसी क्रिटिक के साथ दुश्मनी होगी तो वो आपको गलत रिव्यूज़ भी दे सकता है. Academia and schools, they'll provide the training, reinforce norms, legitimize certain practices. Funding bodies, state institutions, they will promote, they can promote you. और market, economic demand कितना है, global circuit influence कितना है, कौन सा language dominate करेगा, कौन सा genre dominate करेगा, ये market decide करती है. So together all of these actors form a networked ecology of translation. ठीक है. फिर आता है सर्किट्स और फ्लो. तो ट्रांसलेशन मूव्स टेक्स्ट्स. ट्रांसलेशन से क्या होता है, एक फ्लो बनता है ना, सारे आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, टेक्स्ट फ्लो कर रहा है. लेकिन ये कहते हैं ये सारे फ्लोज अनइक्वल हैं बिकॉज कुछ लैंग्वेजेस कुछ कल्चर्स डोमिनेंट हैं. एग्जाम्पल देती हूँ, इंडिया की ही बात करें, लैंग्वेजेस की बात करो, कुछ स्टेट्स बहुत बड़े हैं एंड उनकी जो लैंग्वेज है वो डोमिनेंट है बिकॉज कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ठीक है. वाइल अदर स्टेट्स छोटे भी हैं, लैंग्वेज उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है हो सकता है वो उसकी स्क्रिप्ट ना हो तो वो उतनी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं मानी जाती या डायलेक्ट नहीं माना जाता उतना इम्पॉर्टेंट, इसीलिए उसकी प्रेजर्वेशन के लिए कुछ खास फंडिंग आती नहीं है. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. डोमिनेंट लैंग्वेज, डोमिनेंट जॉनर, डोमिनेंट कल्चर्स को इम्पॉर्टेंस मिलता है, अदर्स आर डिपेंडेंट. तो ये जो इम्बैलेंस है दिस रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल हायरार्कीज ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज. सो स्टडिंग ट्रांसलेशंस sociologically reveals how global inequality is reproduced in culture. Norms, legitimacy and power. तो ट्रांसलेशन नॉर्म्स जो हैं दे आर सोशली क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड. कौन क्रिएट करता है? एडिटर्स, क्रिटिक्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जो जिसको लेजिटिमेसी मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलता. ये जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, दे रिफ्लेक्ट ब्रॉडर पावर रिलेशंस, राइट. द डोमिनेंस ऑफ सर्टन लैंग्वेजेस, सर्टन कल्चर्स, कुछ ट्रेडिशनल कुछ ट्रेडिशंस. सो ट्रांसलेशन भी एक बन गया ना, पॉलिटिक्स तो बन ही गया. तो ट्रांसलेशन ऑल्सो बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग और चैलेंजिंग कल्चरल हायरार्कीज. इट बिकम्स बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. methodological implications. So Simeoni calls for new ways of studying translation. जैसे कि एथनोग्राफी. एथनोग्राफी क्या होता है? फील्ड में जाके काम करना. तो ऑब्जर्विंग ट्रांसलेटर्स एट वर्क, अंडरस्टैंडिंग उनका प्रोफेशनल कल्चर कैसा है. हिस्टोरिकल रिसर्च करो, फील्ड एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, मिक्स्ड मेथड्स यूज़ करो, कंबाइनिंग टेक्सचुअल एनालिसिस विद सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जैसे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, पॉलिसीज़, उसका रिसेप्शन, ये सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करना है या मिक्स्ड मेथड्स यूज़ करना है. सो कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रांसलेशन स्टडीज़ मस्ट मूव बियॉन्ड प्योर लिंग्विस्टिक्स, इट मस्ट, और टेक्सचुअलिटी टू इनकॉर्पोरेट सोशल एनालिसिस, तभी आएगा. एंड इट शुड एग्जामिन हाउ ट्रांसलेशन इज शेप्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, पावर, capital and not just equivalence. Translators should be seen as agents with constrained autonomy situated within fields and networks. Translation studies, if enriched with sociology, it can explain not only how translations are made but also why certain translations dominate, right? उसके बाद लास्ट पे आपका आ जाता है सिमियोनी का ब्रॉडर रिसर्च एजेंडा. His broader agenda, he says कि ये जो ट्रांसलेटर का रोल है ना उसको रीथ्योराइज करो, उसको इनविजिबल से विजिबल बनाओ, उसको सोशली पोजीशन करो. फिर वो कहते हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो फ़र्क है, जो गैप है, उसको ब्रिज करो. स्टार्टिंग इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस विद इन सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स. देन एम्पिरिकल रिसर्च को प्रायोरिटी दो.
collecting data on publishing training, reception, circulation of translation, and finally interdisciplinarity. तो सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़, इन सबको लेके आओ ट्रांसलेशन स्टडीज़ में. So this is about the essay. The takeaways: translation is always socially embedded. It's not neutral. Translators will act within constraints because they are shaped by certain habitus. Oh. Yeah. Because they are shaped by habitus, norms and fields. फिर institutions और power relations, they will strongly determine कि क्या translate होगा, कैसे translate होगा. Translation is a vital site जहाँ पे cultural inequality, dominance और resistance को negotiate किया जाता है. A sociology of translation offers the most comprehensive way to study its role in society. Critical perspective भी था, कुछ some limitations. तो critics ने कहा कि there is a heavy reliance on Bourdieu and that may risk over structuralizing translator का behavior. Less attention is given to micro agency or creative resistance by the translators. कुछ तो लोग कहेंगे. The chapter outlines a framework but leaves much to be developed empirically and still it remains foundational for sociological turn जो सिमियोनी लेके आए translation studies में. Okay. I hope it is clear. ये हमने कर लिया already. What is the nature, what is the structure of the work? Any problem? Let me know. If you wish to join the full course, join it now. अभी 4 ही classes हुई हैं. So you can join. Let me know. Connect with me over Telegram. The details are in the description box. Bye bye.